Everyone, this is Jyoti Gautam, your science teacher, and today we'll be starting with a new topic, that is metals and non-metals. So before we move on to the complexity of metals and non-metals and their properties, let us recapitulate our concept of element, molecules and compounds. Now, here is a periodic table and you must be aware with the arrangement of different elements in this periodic table. Now the concept came that what are the elements and how many elements are there in our nature. So elements are simple. Elements are made up of same type of atoms, or we can define when same type of atoms combine in a ratio, they form element. For example, if I talk about this oxygen, here it is, the atomic number 8, the oxygen. The oxygen element, it is made up of oxygen atom. When oxygen atom, they combine, they form oxygen element. If I talk about sodium, the sodium that is represented with the symbol Na, the sodium element is made up of sodium atoms. Similarly, other elements as well. Now, atom क्या होता है? So atom is the smallest unit of matter. Anything which occupies space and has its own mass is matter, and atom is the smallest unit of matter. जो matter होती है उसकी सबसे छोटी unit क्या होती है? Atom होती है. Matter could be anything. Matter क्या होता है? तत्व होता है. Could be anything. Your pen, paper, chalk, duster, notebooks, almirah, wardrobe, anything you could think of is matter. और हर वो चीज़ जो मैटर है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है एटम से. दैट मीन्स लाइकवाइज जैसे ह्यूमन बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल होती है. सिमिलरली अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स में उनकी केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है. और व्हेन दीज एटम दे कंबाइन दे फॉर्म एलिमेंट. Now come the concept of molecules. Molecules क्या होता है? Molecules होते हैं when two element combine in a fixed ratio, with fixed proportion, they form a molecule. जब दो element combine होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? Molecule बनाते हैं. Now if the two element they are of same type, they form homomolecule, and if they are of different type, they form heteromolecule. अगर मैं बात करूँ O2 तो O2 किससे मिलके बना है? एक ऑक्सीजन से और दूसरे ऑक्सीजन. दैट मीन्स O2 में दोनों ही ऑक्सीजन है. इट इज़ अ होमोमोलिक्यूल. ओके. एंड इफ आई टॉक अबाउट N2, नाइट्रोजन की बात करूँ मैं, सिमिलरली नाइट्रोजन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ये हमारा, ये किससे मिलके बना है? दो नाइट्रोजन एलिमेंट से मिलके बना है. यहाँ पे हमारे सेम है. दैट मीन्स इट इज अगेन अ होमो मॉलिक्यूल. होमो का मतलब होता है सेम, एंड हेट्रो मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट. सो इफ आई टॉक अबाउट H2O इज अ वाटर मॉलिक्यूल है. अब इस वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? इस वाटर मॉलिक्यूल में हमारे दो तो हाइड्रोजन है और एक हमारा क्या है? ऑक्सीजन है. ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोजन के दो दिख रहे हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है. सो दिस इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट. एक है हमारा हाइड्रोजन, एक है हमारा ऑक्सीजन. तो जो वाटर है वो क्या हुआ हमारा? वाटर विल बी आर हेट्रोमोलिक्यूल. वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो हेट्रोमोलिक्यूल. Okay, ammonia molecules, NH3. So molecule is when two different elements combine, they form molecule. If they combine, if two similar elements combine, they form homomolecule. If two different elements combine, they form heteromolecule. Now there are all in all 118 elements in our nature. In periodic table there are 118 elements. Out of those 92 are naturally occurring element and rest are the artificially made or the man-made elements. In past recent years
2 more elements have discovered, but they have not, assembled till date in the periodic table, and even they have not categorized it, they have not even nomenclatured. So in this periodic table, you can easily see the non-metals, the metals, and the metalloids. These are the metals on the extreme left side of periodic table. These are the non-metals, and the zigzag line, this zigzag line which is shown in between the metals and non-metals, having almost 7 to 8 elements only, they are metalloids. We'll be discussing about what are metalloids and non-metals. So here hydrogen is an exception. Hydrogen is placed over the left side of the periodic table, but hydrogen property shows that it's not a metal, it's a non-metal. Okay, so metal, they have certain qualities, non-metals have certain qualities, and metalloids are those elements which share qualities of both metal as well as non-metal. That means metalloids क्या होते हैं, जिनमें मेटल की क्वालिटीज भी होती हैं और नॉन मेटल की क्वालिटीज भी होती हैं. Okay, now if we talk about the qualities or the properties, we have two main categories of properties. एक होती है हमारी physical properties और एक होती है हमारी chemical properties. Now the physical properties, the properties जिसमें हम outer look देख करके हम उसको identify कर सकते हैं. Suppose एक iron का bar है मेरे पास, या फिर I have a gold chain. I can easily mention its qualities कि बाहर से देख करके वो गोल्ड चेन कैसी दिख रही है, मुझे शाइनी दिख रही है. ओके, हार्ड होती है, सॉलिड फॉर्म में है. तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. द सेकेंड इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. ना केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि वो जो गोल्ड है या आयरन बार है, वेन एवर इट इज रिएक्टेड विद द केमिकल, वेन एवर इट इज रिएक्टेड इन द एयर विद द ऑक्सीजन, विद द वाटर, विद एनी अदर एसिड और बेसिस, हाउ विल इट रिएक्ट. सो केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और वो किस तरह से बाकी केमिकल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है. ओके, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट बोथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल. हेयर आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. Metals are solid. Almost all metals are solid. There is only one exception of mercury. Mercury is the only exception. It's represented by Hg. Mercury को हम Hg से represent करते हैं. Mercury is the only metal which is a liquid state. Mercury के अलावा बाकी जितने भी हमारे metal हैं वो सारे क्या हैं? हमारे solid form में होते हैं. The second physical properties, metals are very hard. Yes, you cannot cut a metal with a knife or any other sharp material. Metals are generally very hard. But यहाँ पर भी हमारे साथ क्या है, कि exception है, that the lithium, potassium and sodium. Lithium, potassium and sodium, ये हमारे क्या है? Lithium is represented by Li, potassium को हम K से represent करते हैं और sodium को हम represent करते हैं N और A से. कैपिटल N एंड स्मॉल a. लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम, ये जो तीन हमारे एलिमेंट्स हैं, ये कैसे हैं? ये हमारे सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं. सोडियम इज इनफैक्ट दैट मच सॉफ्ट दैट यू कैन इवन कट दैट विद नाइफ और अ ब्लेड. सोडियम को हम ब्लेड या नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, वो इतना सॉफ्ट होता है. सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री. देन मेटल्स, दे हैव वेरी shine, they have very much of shine, brightness and luster. Luster is like whenever the outer surface is shiny. So metals are generally so shiny and lustrous. The fourth point is metal are malleable. Malleable का मतलब होता है बेटा कि when you can beat it easily into thin spreads or sheets. Malleable, like you must have used aluminium foil. Your mother must have used aluminum foil for wrapping your food materials. आपने सिल्वर फॉइल खाई होगी which is edible. स्वीट्स के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर हमें देखने को मिलती है. So metals are malleable. That means we can beat metal into very thin sheets. हम जितनी पतली शीट चाहे उतनी पतली शीट में हम मेटल को बीट कर सकते हैं. ओके, सो ईजिली हम उसको स्ट्रेच करके बीट कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल हो गया. इनफैक्ट गोल्ड फॉइल भी होती है. चांदी का वर्क, दैट मीन्स सिल्वर फॉइल, जो हम अपने स्वीट्स पे यूज़ करते हैं.
देन मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल का क्या मतलब होता है? डक्टाइल का मतलब होता है, okay, these two words are a bit confusing, but they are the most important quality, they are the most important physical property, the malleability and the ductility. Malleability is when it can be spread into thin sheets, beaten into thin sheet, and ductile means जब हम किसी भी मेटल को खींच करके पतला तार बना सकते हैं. That means when it can be drawn into thin wires. Okay. फॉर एग्जाम्पल अगेन आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कॉपर वायर्स होते हैं. सो वो कॉपर वायर कैसे बना? कॉपर एलिमेंट को स्ट्रेच करके उसको ड्रॉ करके किसमें शेप कर दिया? वायर के फॉर्म में. ठीक है. सेम गोल्ड चेन रिंग्स होती हैं. रिंग्स क्या होती हैं? आपके सर्कुलर लूप्स होता है, तो वो वायर बन के ही लूप बना होता है. चेन्स के फॉर्म में होती हैं ऑर्नामेंट्स हमारे मेटल के. गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है. सो ये क्या है? बेसिकली हम इनको स्ट्रेच करके डक्टाइल होते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं, वायर के फॉर्म का शेप दे देते हैं हम इनको. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ मेटल विच इज नॉट फाउंड इन नॉन मेटल्स. ओके. ऑलमोस्ट एवरी मेटल इज डक्टाइल. आप किसी भी मेटल को यू कैन ड्रॉ इट इनटू वायर्स. देन येस, मेटल्स दे डू हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किस टेम्परेचर पे जाके कोई भी हमारा सब्सटेंस या मटेरियल मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू कर देता है. तो अगर आप आयरन को देखें या गोल्ड को देखें, आप नॉर्मली अपने आयरन के नेल को या आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टोव पे रख के अगर आप उसको रखोगे तो इट बिकम्स रेड, बट वो मेल्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. सिमिलरली गोल्ड, सिल्वर, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. लेकिन यहाँ पर भी वी हैव एन एक्सेप्शन, दैट गैलियम एंड सीजियम. Gallium and cesium, these are two elements of the first in periodic table में starting में ही हमारे आते हैं गैलियम एंड सीजियम. इनफैक्ट सीजियम इज लाइक जो हमारे बिल्कुल फर्स्ट वाली हमारी पीरियोडिक टेबल की रो है उसमें आता है. ठीक है. तो गैलियम एंड सीजियम, दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव वेरी लेस मेल्टिंग पॉइंट. बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है. इनफैक्ट इतना कम होता है सीजियम का तो कि अगर आप उसको कंटेनर से निकाल के अपने हाथ पे रखते हैं तो जो आपकी पाम का टेम्परेचर है, आपकी हथेली का टेम्परेचर है, वो उस पर भी मेल्ट हो जाएगा. दे मेल्ट इन द पाम ऑफ अ हैंड इवन. सो अगेन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है. ऑलमोस्ट सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. गैलियम एंड सीजियम एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, एक ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है. इनफैक्ट बहुत कम होता है. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल मेटल्स दे हैव अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट. इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है. The point at which a substance starts to get boiled, that is the boiling point, and metals, they have a high boiling point. Then the next point is quite obvious, that the metals, they are very good conductor of heat. They are very good conductor of heat. अब good conductor of heat कैसे बनता है कोई भी चीज़? कंडक्टर कभी पॉसिबल है जब when the electron can easily move through it, when it can conduct electricity, when can जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ईजी होगा, तभी वो हीटअप होना स्टार्ट होगा. सो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बहुत अच्छा होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बहुत अच्छा होता है. द लास्ट 2 पॉइंट्स आर रिलेटेड. एंड जस्ट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल. Okay, now here also we are having some exceptions. Best conductor of electricity is silver and copper. But on the other hand, we do have two metal which are poor conductor, that is the lead and the mercury. Lead और mercury हमारे कैसे होते हैं? ये वो metal है जो हमारे poor conductor हैं. They are not very good conductor of heat. And the best conductor of electricity again copper and silver. अब यहाँ पे कॉपर एंड सिल्वर कॉमन है दोनों पॉइंट में. दैट मीन्स कॉपर एंड सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के भी बेस्ट कंडक्टर्स हैं और आपके हीट के भी बेस्ट कंडक्टर्स हैं. अब हम इतना तो समझ गए कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दे आर रिलेटेड. अगर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है कोई भी हमारा एलिमेंट, दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से अगर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज है उसमें, तो उसमें वो इट विल स्टार्ट टू हीटन अप, वो हीट कंडक्टर भी बहुत अच्छा होगा. नाउ अ स्मॉल क्वेश्चन कि बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है नंबर 1 पे. देन कम्स योर कॉपर. तो छोटा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए कि जो कॉपर है हम उसको क्यों यूज़ करते हैं अपनी वायरिंग में
इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जितना भी हमारे होते हैं पोल्स पे, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, वाई डू वी यूज़ कॉपर, वाई डोंट वी प्रेफर सिल्वर, हम सिल्वर क्यों यूज़ नहीं करते? सो दिस इज़ अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर एवरी वन ऑफ यू. Just find out the answer. It's very simple, very logical. Just find out the answer and mention that in the comment box as well as in your classwork copy. I'm repeating my question again. Though silver is the best conductor of electricity and heat, why don't we use silver for our electrical lining? Electrical lining में चाहे household हो, चाहे transformers हो, why don't we use silver? We use copper instead. क्यों हम सिल्वर क्यों यूज़ नहीं करते, कॉपर क्यों यूज़ करते हैं? सो दिट्स अ होमवर्क फॉर यू. देन मेटल्स आर सोनोरस. यस, सोनोरस का मतलब होता है साउंड. सोनो एंड साउंड, दे आर मोर और लेस सिमिलर, दे साउंड सेम वर्ड. सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड वेन एवर यू बीट मेटल. ये आपने देखा होगा, स्कूल की हमारी घंटी होती थी, अब तो इलेक्ट्रिकल बेल्स होती हैं. इलेक्ट्रिकल बेल्स में भी वही कॉन्सेप्ट है कि मेटल को हिट किया जाता है एंड देन इट बीट अप. जो नॉर्मल स्कूल घंटियाँ होती थी वो क्या होती थी, एक सर्कुलर सा मेटल का पीस होता था और उसको हम दूसरे मेटल से या वुड से हम उसको बीट करते थे. सो मेटल्स आर सोनोरस. आप पूजा की घंटी लो या कुछ भी लो, आप किसी भी मेटल को बीट करके देखो. इनफैक्ट योर मेटल बॉटल, यू कैन बीट योर मेटल वाटर बॉटल. अगर आप उसको हल्का सा टिंग करोगे, बीट करोगे, तो वो क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस अ साउंड. सो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी. दैट मेटल्स आर सोनोरस, दे आर हार्ड, दे आर सॉलिड, they're lustrous, they're malleable, they're ductile, have a high melting and boiling point and very good conductor of heat and electricity. Here are some of the pictures of metal. The copper wire, the lead tins, tin ये हमारे जो shelters होते हैं उसमें यूज़ हो जाती है. Then nickel, then steel and zinc. Then again the physical properties of non-metals. Non-metals, just a second. Yeah. Non-metals, okay, see, in our previous slide we have studied that metals are only in solid state. जो metals होते हैं वो सिर्फ solid state में मिलते हैं. But here is a difference in metals and non-metals. The non-metals they can be solid, liquid और gas. जो हमारे non-metals हैं वो हमारे solid form में भी होते हैं, like carbon and sulfur, phosphorus. लिक्विड फॉर्म में भी होता है लाइक ब्रोमीन, एंड गैसेस फॉर्म में भी होते हैं लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ऑक्सीजन हमें इन्वायरमेंट में गैसेस फॉर्म में मिलती है, हाइड्रोजन हमें गैस फॉर्म में मिलती है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में मिलती है, और उसके अलावा हीलियम है, आर्गन है, ये सब भी हमारे किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है. तो जो मेटल नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट्स में मिलते हैं हमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. ना नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. जहाँ पे हमने पढ़ा था कि मेटल हार्ड होते हैं, वहीं पे नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, डायमंड. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. ये हमारा डायमंड नॉन मेटल में नहीं आएगा, नॉन मेटल में, बट यू कैन नॉट फाइंड डायमंड इन योर पीरियोडिक टेबल. डायमंड आपको पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट एज इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ इनफैक्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. ये जो हमारा कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जो कि नॉन मेटल है, जो डायमंड है ये उसी का एक दूसरा स्ट्रक्चरल मॉडिफाइड फॉर्म है, एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है. सो डायमंड अगेन क्या है, एक एक्सेप्शन है, जो कि हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे इन्वायरमेंट में है. देन इज योर नॉन मेटल्स, दे डोंट हैव लस्टर, उनमें कोई शाइन नहीं होती है एक्सेप्ट द आयोडीन क्रिस्टल्स. जो आयोडीन होता है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोडीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, शाइनी होता है. अब आयोडीन सबने सुना होगा कहाँ यूज़ होता है. यस, आयोडीन इज़ यूज्ड इन आयोडिनाइजेशन ऑफ सॉल्ट. जो नमक होता है हमारे घर में खाने वाला नॉर्मल टेबल सॉल्ट, उसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है so that it prevents the goiter and other thyroid related problems. Iodine is a very good panacea for thyroid related problems. So iodine कैसा होता है, lustrous होता है, shiny होता है. एंड उसके अलावा आयोडीन के अलावा बाकी सारे नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस या फिर डल, उनकी सरफेस पे शाइन नहीं होती. देन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मैलेबल एंड नॉन डक्टाइल. मतलब इन नॉन मेटल्स को हम ना तो हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, ना ही हम इनको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन कि अगर आप कार्बन है, कार्बन को अगर आप बीट कर रहे हैं, तो डू यू थिंक दैट इट विल बीट इनटू थिन एंड स्मॉल शीट्स? No, it will break down.
जो कार्बन है अगर हम उसको बीट कर रहे हैं, सल्फर को बीट कर रहे हैं, तो बीट नहीं होगा, ना ही वो ड्रॉ होगा, वो क्या होगा, वो टूट जाएगा. The non-metals which are solid and liquid, they have a low melting point. Yes, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो गैसेस वाले नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हाई होता है, बट जो सॉलिड एंड लिक्विड नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. सिमिलरली जो सॉलिड एंड लिक्विड नॉन मेटल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है. ओके, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. हेयर ऑल्सो ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन. ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट अगेन आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा, बट इट इज एन अगेन एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया दैट द डायमंड इज एन एलोट्रोपिक और स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बन. सिमिलरली ग्रेफाइट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्बन. देन नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. आप जो नॉन मेटल्स हैं आप इनको कितना भी बीट करें, टिंग करें, दे विल नॉट प्रोड्यूस साउंड. ओके, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. ऑन द अदर हैंड मेटल क्या होते हैं, वो सोनोरस होते हैं. So non-metal physical properties of non-metal are they can be in solid, liquid and gas, all three states. They are soft, they do not have luster, non-malleable, non-ductile, generally have low melting and boiling point, bad conductor of heat and electricity, and are non-sonorous. Exceptions are always there. Here are some of the pictures of non-metal: the diamond, then the carbon powder, carbon piece, phosphorus, sulfur, boron, arsenic, antimony. No, antimony is metalloid, but the elements they are present in the box, these are the metalloids. Yes, they are non-metal, these are the metalloids. Metalloids कौन से हैं आपके, boron, silicon, germanium, antimony, arsenic. Okay, now metalloids क्या होते हैं, metalloids again like I have mentioned, they share the property of metal as well as non-metal. मतलब इनमें कुछ properties तो metal जैसी होंगी, कुछ कैसी होंगी, non-metal जैसी. Okay, now moving on to the chemical properties of metals. The first is how do they react with oxygen. Metals they generally react with oxygens to form metal oxides. Metal oxides बनते हैं. अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, Mg, अगर मैग्नीशियम है Mg, when it reacts with oxygen O2, ये क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO. ओके, अगर हम बात कर रहे हैं कॉपर की, तो कॉपर हमारा क्या बना रहा है, when copper is heated and combined with oxygen it form copper oxide, CO. aluminium oxide. ओके, बेरिलियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड. तो मेटल क्या कर रहे हैं, मेटल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. नाउ द मेटल ऑक्साइड्स, उनका जो बेसिक नेचर है वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो बेस होते हैं. बेसिक मीन्स बेसिस. जस्ट अ सेकेंड, बेस, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लास में. तो जो मेटल की ऑक्साइड्स होते हैं वो किस तरह के होता है, उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेस होता है. ठीक है, बेस मतलब व्हेन आई डिजोल्व दिस कॉपर ऑक्साइड और व्हेन आई डिजोल्व पोटेशियम ऑक्साइड इन वाटर, वो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम ऑक्साइड को अगर मैं डिजोल्व करती हूँ पानी में तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो हाइड्रोक्साइड होता है क्या होता है, बेस होता है. इनका pH कितना होता है, मोर देन 7 होता है. ओके, देन व्हेन metal they react with water, they form metal hydroxides and metal oxides, and they also releases the hydrogen. सोडियम को अगर हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड with the emission of water molecule, hydrogen molecule. Similarly, ये K is a symbol of potassium. पोटेशियम को अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Aluminium will form aluminium hydroxide and iron will form iron oxide along with emission of hydrogen molecule. Now the concept came कि they form hydroxide and hydroxides are bases. So the non-metal, metal form hydroxides and these are the basic in nature. If we go on a comparison, then non-metals they do not generally react with water,
but when they react with oxygen, they again form oxides, and oxide of non-metal are acidic in nature. दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, बट नॉन मेटल्स का कैसा होता है, एसिडिक होता है. ओके, देन द मेटल्स दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बनाते हैं एंड हाइड्रोजन रिलीज होता है. मैग्नीशियम जब हम रिएक्ट कराएंगे तो फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि अगर इफ वी आर रिएक्टिंग इट विद HCl, द कॉमन एसिड दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर हम HCl से रिएक्ट कर रहे हैं मैग्नीशियम को तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड विद द एमिशन ऑफ हाइड्रोजन. एल्यूमिनियम को करा रहे हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा. जिंक से जिंक क्लोराइड, आयरन से आयरन क्लोराइड. ओके, और हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग से हमारा रिलीज हो रहा है, विच प्रोड्यूस अ पॉप अप साउंड. Then the reaction of metal with metal salt solution. Yes, अगर मैं कॉपर को जिंक के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, इफ आई एम रिएक्टिंग जिंक इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, डिपेंडिंग ऑन ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट आपने देखा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लास में जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, यू नो, सबसे बोल्ड होता है, वो क्या करता है, वीक वाले को उसके सीट से हटा करके खुद वहाँ बैठ जाता है. सिमिलरली मेटल के केस में भी क्या होता है, मेटल के केस में भी होता है, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है. So this type of reaction is known as displacement reaction. A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. Salt solution में से less reactive metal को more reactive metal हटा देता है. Okay, here are some of the examples. अगर हम मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन करके कॉपर को उसकी पोजीशन से हटा करके खुद सल्फेट के साथ बाइंड होके मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अपना अलग सोल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, कॉपर फिर से हट गया वहाँ से. आयरन को कर रहे हैं तो आयरन सल्फेट बन रहा है, कॉपर फिर से डिस्प्लेस हो गया. दैट मीन्स जो कॉपर है वो रिएक्टिविटी उसकी क्या है, कम है. जो मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर. सो कॉपर इजीली गेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन व्हेन रिएक्टेड विद मैग्नीशियम, जिंक और आयरन. Now here is the reactivity series of metal, कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है. पोटेशियम एंड सोडियम, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. मतलब अगर आप किसी भी सोल्यूशन में पोटेशियम एंड सोडियम को डाल रहे हैं तो वो दूसरे एलिमेंट को ईजिली उसके सॉल्ट सोल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा. देन कम्स द कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर है यहाँ पे जाके. ओके, मतलब अगर आप इनमें से किसी को भी कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को उसके सोल्यूशन से रिमूव करके खुद अपने अपने रिस्पेक्टिव सल्फेट सॉल्ट बना लेंगे. ठीक है, सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. एंड गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड. आपने देखा होगा कि हम इजीली गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहन लेते हैं. सिल्वर तो फिर भी काला पड़ जाता है, थोड़ा बहुत ऑक्साइड्स बना के रिएक्ट कर लेता है, बट जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो हम इजीली कैरी कर लेते हैं, हम इजीली उनको पहन लेते हैं, बट दे डू नॉट चेंज इट्स कलर, लस्चर, उसमें कोई चेंज नहीं आता. क्यों, इट इज़ नॉट एट ऑल रिएक्टिव. गोल्ड जो है वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. देन सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. Non-metals, their reaction with oxygen, they again form the non-metal oxides. वो क्या करते हैं, वहाँ पर भी हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, बट ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक. मतलब when we dissolve this SO2 in water, it will form सल्फ्यूरिक एसिड. अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है कि जो नॉन मेटल है हमारा सल्फर या कार्बन, व्हेन वी रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, इसने क्या फॉर्म किया, सल्फर डाइऑक्साइड. यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड.
ठीक है, अगर इसी सल्फर डाइऑक्साइड को मैं वाटर में डिसॉल्व करती हूँ, इस ऑक्साइड को इफ आई एम डिसॉल्विंग इट इन H2O, दिस विल फॉर्म H2SO4, H2SO4 क्या बनाएगा? H2SO4. जस्ट अ सेकेंड, आई विल राइट इट डाउन. H2SO4. ठीक है, ये क्या है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड. HNO3. अगर मैं यहाँ सल्फर की जगह मैं नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हूँ तो क्या बनता है? NO2. और जब इस NO2 को मैं वाटर में डिसॉल्व करती हूँ तो क्या बनेगा? HNO3. नाइट्रिक एसिड, क्यूपरिक एसिड. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है. और मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है. मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? एसिड्स बनाते हैं. ठीक है. नाउ non metals, they do not react with water, they generally do not react with water, and this is the reason that we prefer to store them in water. The highly reactive non metal जो air के साथ react करते हैं, मतलब यहाँ पे जो reaction with oxygen, oxygen is present in air only. So oxygen के साथ जब वो react करते हैं तो कुछ non metal ऐसे हैं जो बहुत vigorously यानी कि बहुत intensely react करते हैं. They just burst up, they catches fire, उनमें आग लग जाती है. तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम उन्हें वाटर में स्टोर करते हैं फॉर अवॉइडिंग दैट विगरस रिएक्शन ऑफ दोज नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन और द एयर. सो जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दो दे मे बी रिएक्टिव इन एयर, एंड सच नॉन मेटल्स आर स्टोर इन वाटर. Yes, phosphorus is a reactive non-metal. So phosphorus is a very reactive non-metal जिससे हम क्या करते हैं? हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं because it catches fire so vigorously and so intensely if it is exposed in air. So to prevent that contact of phosphorus with the atmospheric oxygen हम उसको वाटर में स्टोर करते हैं. वाटर क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कट कर रहा है फॉस्फोरस से रिएक्ट करने में. There is one, yeah, here I would like to mention one more concept like sodium. Sodium is a metal. Sodium is not a non-metal. Sodium क्या है? हमारा metal है, but वो भी बहुत ज़्यादा reactive है. तो हम उसको किस में स्टोर करते हैं? अब सोडियम मेटल है तो वो हमारा एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्टिव है और वाटर के साथ भी रिएक्टिव है. मतलब एयर के प्रेजेंस में भी और वाटर के प्रेजेंस में भी सोडियम इज इट कैचेस फायर. इट्स वेरी हाईली रिएक्टिव है. हमने यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा भी था इधर कि पोटेशियम सोडियम क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होते हैं. दे इजीली कैचेस फायर, बहुत जल्दी डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं. दे जस्ट बर्स्ट अप विद अ फायर. सो हम फॉस्फोरस को हमने वाटर में स्टोर किया है. क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल है, वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा. लेकिन जो सोडियम है वो मेटल है और वो वाटर से भी रिएक्ट करता है, एयर से भी रिएक्ट करता है. तो हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं? वी स्टोर इन केरोसिन ऑयल. ठीक है. तो जस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं हमेशा. देन नॉन मेटल रिएक्शन विद एसिड. नॉन मेटल्स दे डोंट रिएक्ट विद एसिड. अगर आप कार्बन को या सल्फर को एसिड से रिएक्ट कराओगे तो दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. देन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we'll be discussing about how do the metals and non-metals react. Metals and non-metals वो actually react कैसे करते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं. ठीक है. So I hope this much of concept is clear to you about the physical properties, about the chemical properties. Okay, the reaction, the main difference between elements and molecules, homomolecules and heteromolecules, atoms क्या होते हैं, matter क्या होता है. I hope this much concept is clear to you, and if you come across any doubt, you can ask me anytime. Thank you so much.